Good evening and welcome everyone to this live session. Hope you guys are doing fine. So as I told you that you have to read this PPT on state legislature once, only then we would be able to make better sense out of it, and this is an area where we can save a little bit of time because 90% of the things have already been covered in the parliament topic. Alright. So additional qualifications are all the same. There is not much of a difference. It would be like injustice to your time and to my time if I repeat everything. Article 173, a person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the legislature of a state unless he is a citizen of India. In the last class, I had told you about bicameral state legislature or unicameral state legislature. What are the provisions behind What are the provisions behind bicameral legislature and unicameral legislature? A person should be a citizen of India and he should make and subscribe before some person authorized in that behalf by election commission an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in third schedule. Person is in the case of a seat in legislative assembly not less than 25 years of age. So minimum age for contesting the elections to state legislative assembly is 25 years. Voice getting stuck should not be an issue with anyone. Okay, Arshika, please log out, completely log out and then open a new incognito window, and then start. You'll be able to watch the session smoothly. Possess such other qualifications as may be prescribed in that behalf by a law made by the parliament. So even if the new conditions have to be incorporated for MLAs, then also the law has to be made by parliament. State legislative assemblies law will not work here. Okay. Law passed by the state legislative assembly will not serve the purpose. Person should possess such other qualifications as may be prescribed in that behalf or under any law made by the parliament. Clear? Additional qualifications can be prescribed as we had seen in the case of Parliament also 1951. So I am not going to read this. Okay, in case the seat is reserved for scheduled caste, the same thing. In case of any other seat, he is an elector for any assembly constituency in that particular state. Okay, in that particular state. Clear? For Lok Sabha constituency also, in that state, person has to be a voter in that state in order for him to contest elections from that constituency. उस constituency से, उस चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए उस राज्य का वोटर होना जरूरी है जिस राज्य में वो चुनाव क्षेत्र है. Clear? Same है बिल्कुल. State legislature qualifications, additional qualification. A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the legislative council of a state to be filled by election unless he is an elector of any assembly constituency. Member of legislative assembly या member of legislative council पंजाब से अगर किसी को बनना है तो उसको पंजाब में किसी भी, अगर मेरे को पंजाब में कॉन्स्टिट्यूएंसी पटियाला से इलेक्शन लड़ना है तो मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी फिरोजपुर से भी अगर फिरोजपुर में भी वोटर हूं तो ये सफिशिएंट है. ये जरूरी नहीं कि मैं पटियाला में ही वोटर होना चाहिए हूं. ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी फॉर मी टू बी अ वोटर इन पटियाला इटसेल्फ. आई कैन बी अ वोटर इन फिरोजपुर एज वेल. डन है? क्लियर टू एवरीवन? So this is there. Now this is applicable to both state legislative assembly and state legislative council. A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the legislative council of a state to be filled by nomination by governor unless he is an ordinarily resident
he is ordinarily resident in that state. Nomination, legislative council में भी कुछ सीट्स रिजर्व करी जाती हैं, नॉमिनेशन के जरिए फिलअप करी जाती हैं बाय गवर्नर. नॉमिनेटेड सीट्स के लिए भी उस स्टेट में रेजिडेंट होना जरूरी है, ऑर्डिनरली रेजिडेंट होना जरूरी है. लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स के लिए इलेक्टर होना जरूरी है. ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रेजिडेंट होना जरूरी है. याद रह जाएगा ये पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन टू बी नोटेड बाय यू गाइस. Okay, so these things are there. OCIs cannot contest elections. Okay, so these things are there. Now coming here, we'll talk about this in the citizenship chapter also. This is how the additional qualifications could be there. Fixed minimum qualification for MLAs, MPs. Haryana government has written to the center because Union Parliamentary law is required to prescribe new conditions for both state legislative assembly and state legislative council. State government's earlier decision to fix minimum qualification for panchayat representatives had received widespread praise. अब अगर पंचायती राज बॉडीज के लिए नई कंडीशंस प्रिस्क्राइब करनी हो तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लॉ द्वारा की जा सकती हैं. क्लियर? अब ये थोड़ी छोटी चीजें ध्यान देना जो मैंने बोली हैं, दोबारा एक बार क्लास को देखना हो तो देख लेना, बट ये चीजें नोट डाउन जरूर कर लेना. ठीक है, मिनिमम एज होनी चाहिए, ये क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. दिस कुड एज वेल बी आस्क्ड द क्वेश्चन इन द लाइट ऑफ increasing criminalization of politics, increasing criminalization being observed in the politics these days. Analyze the pros and cons of making educational qualification a necessary requirement. Now I ask you a question. Do you think being educated makes good politician? No, this is not a previous year question. This is the practice question for you. Okay, do you think that अब ये दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, इसमें आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर भी हैं, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट भी हैं कि गुड बीइंग अ गुड पॉलिटिशियन, ठीक है, डज नॉट रिक्वायर अ गुड एजुकेशन. देयर हैव बीन वेरी वेल एजुकेटेड पॉलिटिशियंस आल्सो, दे हैव बीन इक्वली करप्ट एंड दे हैव बीन इक्वली गिल्टी ऑफ बैड एटीट्यूड और बैड आउटलुक towards women, towards disprivileged sections of society. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं. जरूरी नहीं है कि वो एम्पैथी और वो सारी क्वालिटीज एजुकेटेड लोगों में हो. बेटर पॉलिटिशियन जो थोड़े लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से आते हैं वो ज्यादा अच्छे पॉलिटिशियंस माने गए हैं लोक भलाई के केस में भी. ठीक है, हाँ, ability to appreciate issues. There have been very smart politicians. लालू प्रसाद यादव बिना पढ़े लिखे भी रेल चला दी, मतलब चलो चारा खा गए. अब जरूरी नहीं है कि अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो वो ज्यादा कुछ काम करता है इस केस में, राइट? राहुल गांधी, he is well educated, he could not make a good politician. When I am using the word politician, it means a good policy maker. It means somebody with a good bargaining power. It means not only somebody who's got a good winnability like Prime Minister Modi. Winnability की बात नहीं हो रही है, पॉलिसी को बैलेंस बिठा के बनाने की बात हो रही है, राइट? तो ये सारी चीजें हैं. ठीक है, तो ये दोनों चीजें इसमें लिखोगे. Yes, Twinkle, you are right. So, state legislature, oath होती है, same oath, सारा कुछ किसको ओथ किसके सामने लेनी होती है ये तुम पढ़ोगे. ठीक है, एक ओथ जो है क्वालिफिकेशन में आती है, जो मैंने डिफरेंस बताया था क्वालिफिकेशन और कंडीशंस ऑफ ऑफिस का. क्लियर है ना? ही शुड हैव सब्सक्राइब्ड बिफोर एन अथॉरिटेटिव पर्सन. तो ये ओथ वाला पॉइंट वो है, ठीक है ना? सब्सक्राइब बिफोर द ओथ, ये इलेक्शन से पहले वाला है, क्वालिफिकेशंस का पार्ट है. दूसरी ओथ इलेक्शन के बाद कंडीशंस ऑफ ऑफिस वाला पार्ट है, राइट? अगेन एज आई सेड, दिस इज कंप्लीटली डिट्टो फोटोकॉपी, बट लोकसभा की जगह लेजिस्लेटिव असेंबली लिख दिया गया है. क्लियर? आर्टिकल 188. A member of state legislature swears to bear true faith and allegiance to the Constitution of India, to uphold the sovereignty and integrity of not just that particular state but entire India, to faithfully discharge the duties of his office.
ठीक है, अगर कोई मेंबर ओथ नहीं लेता, इलेक्शन भले ही जीत के आया हो और वो ओथ के दिन छुट्टी पे हो, गिनती करते टाइम पता ही ना लगा हो कि उसने ओथ नहीं ली, अटेंडेंस ना लगी हो, तब भी उसको लेजिस्लेचर और वोट, लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट करना, किसी बिल पे अगर वो वोट दे रहा हो और 1 साल के बाद ये पता लगे कि उसने ओथ ही नहीं ली, तो उसको मेंबर नहीं माना जाएगा। और कोई ऐसे दिन जिनके लिए वो सारे दिन जिनमें वो बिना ओथ लिए मेंबर की कैपेसिटी में काम कर रहा था, पार्टिसिपेट कर रहा था, 500 रुपए पर डे जुर्माना देना पड़ेगा, राइट। A person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of legislative assembly or legislative council of a state if he holds any office of profit. How many of you are clear about office of profit? How many of you are clear about office of profit? लिखो ओ यस, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए ओ यस लिख दो फटाफट, ठीक है। ओ नो लिख दो, जिन लोगों को नहीं आता लिख दो नो। नो लिखने से हिचकिचाना मत, मैं रिपीट नहीं करूंगा, वो एक अलग बात है। ओ नो सोनू कुमार, वेरी नाइस। और कौन है? मनु, प्लीज वॉच द प्रीवियस सेशंस, आई हैव डेल्ट विद इट क्वाइट एक्सटेंसिवली, बहुत डिटेल में मैंने समझाया था। जिन लोगों ने, नितेश आपको तो करना चाहिए था, आप पहले दिन से हो क्लासेस में। क्लियर? Just 1 minute. So these things are there. Now, if he is of unsound mind and stands to declare, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में बता चुका हूं, तो अभी नहीं। Then, if he is not a citizen of India, ये पढ़ लोगे, if he is not a citizen of India or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign state, like Akshay Kumar, right, or is under any acknowledgement of allegiance or adherence to a foreign state, like किसी ने कोई खिताब जीता, वहां से उनको कोई कुछ भी ऐसा ऑनरेरी टाइटल वगैरह दिया, इंडियन प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना अगर किसी पर्सन ने कनाडा में, यूएसए में या किसी भी कंट्री में कोई ऐसा उपाधि या कुछ ऐसी टाइटल वगैरह मिला है जिससे ये प्रतीत होता है कि वो पर्सन की जो एलिजियंस है, जो वहां उसकी डिवोशन है, वो किसी फॉरेन स्टेट की तरफ है, ठीक है, तो ये एक और डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, for the purpose of this clause, a person shall not be assumed to hold an office of profit under government of India. अब जो फॉरेन स्टेट में जैसे कि कुछ रूल्स अमेंड करे गए थे 2006 में, यूपीए गवर्नमेंट ब्रॉट अबाउट अ लॉ 2006 में, बट उस लॉ को बाद में अबैंडन कर दिया गया। फिर 2019 में
एक बिल लाया गया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, बेसिकली एनआरआईज वो वोट कर सकते हैं और कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी इन चीजों पे क्लैरिटी नहीं है, कॉन्टेस्ट करने वाली बातों पे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को अमेंड किया गया है, क्लियर। सो government had announced the rules allowing the around 50 lakh NRI citizens living abroad to contest and vote in the Lok Sabha elections. तो गवर्नमेंट ने रूल्स वगैरह बना दिए थे, तो इस पे कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह चल रही थी। लेटेस्ट सेट ऑफ रूल्स जो कि लाए गए, तो उसमें कंफ्यूजन जो था कि एनआरआईज वोट कर सकते हैं इंटरनेट से या नहीं, उसमें मिनिस्ट्री ने ये कहा इंटरनेट से वोटिंग अलाउड नहीं होगी, बट फिजिकली आप फॉरेन से रजिस्टर कर सकते हो वोट देने के लिए, बट फिजिकली अगर आप प्रेजेंट नहीं हो पोलिंग डे पे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो आप वोट नहीं कर सकते, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने एनरोलिंग एनआरआई सिटीजन इन दी वोटर लिस्ट ये स्टार्ट कर दी है, तो सितंबर 2019 में बेसिकली ये बिल पास हो गया था, रूल्स अभी लाए गए हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने जो लोग एनआरआई हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, इंडिया के बाहर रह रहे हैं, बट जिन्होंने अपनी इंडियन सिटीजनशिप सरेंडर नहीं करी है, तो दे कैन पार्टिसिपेट इन दी वोट्स, ठीक है, दे कैन पार्टिसिपेट। तो फॉरेनर होना, फॉरेनर का मतलब ये नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने 2014 में ये प्रॉमिस किया था और प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार ने इसे फुलफिल किया है, राइट। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया डज नॉट कॉन्फर राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, ओके, डज नॉट कॉन्फर any political right whatsoever. अक्षय कुमार was an overseas citizen of India. तो हम बात करेंगे बाद में, ठीक है। ओवरसीज नहीं थे, वो थे तो इंडिया में ही, वो अलग बात है कि आम खाने के फायदे बहुत होते हैं, ठीक है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हम खास आदमी ही प्राइम मिनिस्टर के साथ में आम खाते हैं और वो आम नागरिक माने जाते हैं, इवन इफ रूल्स डू नॉट परमिट। तो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, कोई उस आदमी के साथ में पतंग उड़ा लो तुम, केस माफ, राइट। तो आम खा लो तो तुम आम नागरिक हो इंडिया के, इवन इफ यू हैव एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ कनाडा। हम बात करेंगे इसकी आर्टिकल्स 5 to 11 सिटीजनशिप के चैप्टर में। नाउ a person shall be disqualified for being a member of legislative assembly or council if he is so disqualified under 10th schedule. 10th schedule किससे डील करता है? 10वीं क्लास के बच्चे बताएंगे, जल्दी जल्दी बताओ। Yes, they cannot vote. बट अक्षय को, क्योंकि खिलाड़ियों के खिलाड़ी ऐसे ही होते हैं, आम खाने जाते हैं। क्लियर है? एंटी डिफेक्शन लॉ, चलो आगे फटाफट। डिस्क्वालिफिकेशंस, ये सेम एंटी डिफेक्शन लॉ एज एप्लीकेबल टू लोकसभा एंड राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आज हमने करंट अफेयर्स की क्लास में, जो लोग करंट अफेयर्स में नहीं थे आज या नहीं है अदरवाइज भी, उनके लिए थोड़ा सा बता रहा हूं। एंटी डिफेक्शन लॉ में यहां पे ये लिखा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ पार्टी जो नेशनल यूनिट है, नेशनल यूनिट लेवल पे डिसाइड करी जाती है। यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी नेशनल यूनिट ये डिसाइड करेगा कि राजस्थान स्टेट यूनिट में क्या बहुजन समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मर्ज हो सकती है या नहीं, ठीक है। ये चीज मैंने वहां पे डील करी थी, तुम लोगों को पता होगा, नहीं तो आज की क्लास में उसे देख लेना। डेट है आज 5th of November 2020, नोट कर लेना इसे। कुछ नई डेवलपमेंट्स राजस्थान स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के चलते। एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशंस एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, अ पर्सन फाइंड, इम्प्रिजन्ड और कन्विक्टेड ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। सेम थिंग, same thing getting repeated. Do I need to read it for you guys?
देखो, फील फ्री, आई कैन रीड इट, बट आई वुड रादर प्रेफर इन्वेस्टिंग दिस टाइम इन पंचायती राज एंड अदर टॉपिक्स. बिल्कुल सेम है. तो तुम लोग जो रिवीजन के बारे में थोड़ा सा पूछते हो, मैं बता देता हूं. इनिशियली इट विल टेक यू 1 डे टू रिवाइज पार्लियामेंट का पूरा चैप्टर, 22 चैप्टर गिवन इन लक्ष्मीकांत और थ्रू पीपीटीज. बहुत सारे उसकी क्लासेस हैं, हमने भी क्लासेस करी. बट ग्रेजुअली यू वुड सी कि चीजें ग्रिप में आ रही हैं. तो फिर अगले दिन 2-3 दिन में स्टेट लेजिस्लेचर चैप्टर को पढ़ लेना. वेरी कॉमन सेंस काइंड ऑफ विजडम आई एम बेस्टोइंग अपॉन यू, आई वुड से. जिस दिन पार्लियामेंट पढ़ रहे हो उस दिन स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ लेना. जिस दिन प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो उस दिन गवर्नर पढ़ लेना. जिस दिन प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे हो उस दिन चीफ मिनिस्टर पढ़ लेना. जिस दिन कैबिनेट सेक्रेटरी पढ़ रहे हो उस दिन चीफ सेक्रेटरी पढ़ लेना. मेक्स सेंस फॉर यू? ठीक है ना? A person convicted of any offense and sentenced to imprisonment for not less than 2 years other than certain offenses shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for a further period of 6 years since his release. 2 plus 6 साल. Clear? Then स्टेट लेजिस्लेचर डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स, सेम थिंग गाइस, बिल्कुल सेम थिंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. फेलियर टू लॉज अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस. हाउ मेनी डेज टाइम इज गिवन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू लॉज एन अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ इलेक्शंस? I am pausing the session for 2 minutes so that these guys can resolve their problem, or it might work at their end. नाउ इट्स वर्किंग फाइन. मैं तुम लोगों की बातों में आके ना ये दिक्कत कर देता हूँ, उसे रिफ्रेश कर दो या कुछ कर दो. इट वॉज वर्किंग फाइन ऑलरेडी पहले से भी. ओके फाइन. सो तो ये थोड़ा सा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर ऑफिस अंडर कंपनी इन द कैपिटल ऑफ विच द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज नॉट लेस देन 25% शेयर्स. अगर मैं एमएलए हूं और मैं किसी ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी के शेयर्स या उस कंपनी से कुछ रिलेशन में हूं जिसमें सरकार के 25% से ज्यादा या 25% शेयर्स हैं, ठीक है, तो भी मैं डिस्क्वालिफाइड माना जाऊंगा. स्टेट लेजिस्लेचर. मेघालय गवर्नर सीक्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज ओपिनियन. सो द पॉइंट टू बी टेकन अवे फ्रॉम हियर इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यदि कोई लेके बैठा है, सरकार के अंडर काम भी कर रहा है और एमएलए या एमपी भी है, एमएलए की बात कर रहे हैं अभी, या एमएलसी भी है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं एमएलसी. दोनों केसेस में गवर्नर ये डिसाइड करते हैं कि उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए या नहीं, उसकी सीट को वैकेंट डिक्लेयर किया जाए या नहीं. एंड व्हाइल डिसाइडिंग सो गवर्नर हैज टू कंसल्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, ओनली इन केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड हो. बट अगर क्वेश्चन एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, देन गवर्नर इज नॉट बाउंड टू कंसल्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मुद्दा है, डिस्क्वालीफाई करना है किसी एमएलए को, तो गवर्नर इलेक्शन कमीशन की कंसल्टेशन के हिसाब से काम करेंगे. सच कंसल्टेशन, सच एडवाइस एज टेंडर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू द गवर्नर इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नर. कूल है, समझ में आ गया. चलो आगे. द मैटर वाज रेफर टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज रिक्वायर्ड अंडर आर्टिकल 192. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर
किसी के भी मुद्दे पे ये चीज उठती है कि उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए क्योंकि वो एमएलए या कोई एमपी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हथिया के बैठा है, अपना के बैठा है, तो ये प्रक्रिया यहां पे रहती है, ये प्रोसेस रहता है। हाई कोर्ट ने क्या किया, देखो इस केस की थोड़ी सी पेक्यूलियरिटीज को जो स्पेसिफिक टू दिस केस हैं उसको समझते हैं। इलेक्शन कमीशन को मैटर रेफर कर दिया गया। मैटर वाज फॉरवर्डेड टू इलेक्शन कमीशन बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन बाय मदल सुमेर, अ रेजिडेंट ऑफ जोवाई, हु हैड अप्रोच्ड हाई कोर्ट टू डिस्क्वालीफाई 17 एमएलएज ऑन सर्टेन लीगल ग्राउंड्स। हाई कोर्ट ने नवंबर 9 को यह कहा कि मेघालय पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज एक्ट, ये पूरा लंबा चौड़ा एक्ट है, अपॉइंटमेंट, सैलरीज, अलाउंसेस एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट ऑफ 2005, for the want of legislative competence of state legislature. ठीक है, act was struck down and the disqualifications were left at the hands of the governor. Although all the 17 MLAs had resigned en masse on the same day itself, Mr. Sumer, the ordinary resident of Meghalaya, told the governor that their resignation was of no consequence and the disqualification does not allow them to continue as MLAs. He cited the Supreme Court ruling and the powers conferred upon the governor and said that 17 MLAs stand disqualified by the operation of law with effect from the date they were appointed as parliamentary secretaries. मैं इसको पूरा समझाऊंगा अभी, तो अभी के लिए पढ़ लो। थोड़ा सा समझ आया। देखो इस केस में क्या हुआ, दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जस्ट अ मिनट। एनीवे इस पे ही समझते हैं। देखो एमएलएज ने पहले पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की पोजीशन अपना ली, ठीक है। एमएलएज एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, ठीक है। उसके बाद मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली पास्ड अ लॉ अमेंडेड दिस एक्ट। मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली ने ये जो एक्ट है मेघालय पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अपॉइंटमेंट सैलरीज अलाउंसेस एक्ट 2005 को अमेंड किया, ठीक है। 17 लेजिस्लेटर्स जो एमएलए के थे, कांग्रेस के थे, उन्होंने एन मास उसी दिन रिजाइन कर दिया जिस दिन 9 नवंबर को मिस्टर सुमेर, एक रेजिडेंट जो है मेघालय के, वो कोर्ट में गए, ठीक है। मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली ने लॉ पास कर दिया डिक्लेयरिंग द ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज टू बी आउट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि ये 17 एमएलए पहले से ही पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अपॉइंट हो चुके थे, राइट। 17 एमएलए पहले से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में थे, 8 नवंबर तक ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में थे। 9 नवंबर को ये लॉ को 8 नवंबर को इस लॉ को पास किया गया क्योंकि सुमेर ने, मिस्टर सुमेर जो कि एक रेजिडेंट है मेघालय के, उन्होंने पीआईएल फाइल किया कि ये कैसे एमएलए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में हैं, तो इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, ठीक है। हाई कोर्ट ने गवर्नर को बोला कि भाई ये क्या है, ठीक है। तो गवर्नर ने बोला कि ठीक है मैं तो डिस्क्वालीफाई करने के लिए रेडी हूं क्योंकि मैं बीजेपी का हूं। मतलब समझ रहे हो ना, गवर्नर वाज एन अपॉइंटी ऑफ बीजेपी। अब ये एमएलए कांग्रेस के थे, यहां पे पॉलिटिकल एंगल नहीं है, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूं कि हाई कोर्ट ने ये कहा जब ये 17 एमएलए ने रिजाइन कर दिया, ये 17 एमएलए रहे ही नहीं, इनकी डिस्क्वालिफिकेशन उसी दिन से हो गई जिस दिन से ये मैटर सामने आया। उसके बाद अगर आपने लॉ पास किया और इन एमएलए की 17 एमएलए के 17 वोट्स की सपोर्ट से किया,
तो ये तो डिस्क्वालिफाइड है, इस एक्ट को नलिफाइड डिक्लेयर कर दिया। यानी कि जिस छाते में, जिस अम्ब्रेला के अंडर ये एमएलए प्रोटेक्टेड थे, वो अम्ब्रेला उड़ गया हवा में। कौन सी हवा में? जुडिशरी की हवा में। हाई कोर्ट ने उसे रिपील कर दिया। अब ये जो अमेंडमेंट था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, इन 17 एमएलए को बचाने के लिए, वो अम्ब्रेला अब इनवैलिडेट डिक्लेयर हो गया। नाउ गवर्नर के पास ये पिटीशन गई, गवर्नर के सामने ये मैटर था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का इन्होंने उल्लंघन किया है या नहीं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज मेघालय में प्रोटेक्टेड नहीं है। यानी कि अगर कोई एमएलए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्वायर करता है, ऑक्यूपाई करता है मेघालय सरकार के अंडर, तो वो दोषी माना जाएगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट 2005 का। क्लियर? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट 2005 पार्लियामेंट का लॉ है, जिसमें कि स्टेट के भी उन ऑफिसेस का नाम है जो प्रोटेक्टेड हैं। यानी कि उन ऑफिसेस में अगर कोई सरकार के अंडर भी काम कर रहा है और वो लेजिस्लेटिव असेंबली में भी है, तो उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, वो प्रोटेक्टेड है। अब गवर्नर ने ये मैटर भेज दिया इलेक्शन कमीशन को कि मेघालय के इन एमएलए पे क्या किया जाए। इलेक्शन कमीशन जो भी एडवाइस देगा मेघालय में या पंजाब में या स्पीकर लोकसभा को, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, वो एडवाइस गवर्नर या प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगी। क्लियर? डन? इसमें क्या किया जाता है? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने की कोशिश करी जा रही है लॉज को। अगर ये पता लगता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एमएलए ने एक्वायर कर लिया है और वो एमएलए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दोषी हो जाएंगे एक्ट के, तो बाद में जिस डेट से उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्वायर किया होता है, उस डेट से उन्हें डिस्क्वालीफाई, उस डेट से उनको एग्जेम्प्ट करने की कोशिश करी जाती है उन ऑफिसेस को। ठीक है, बैक डेट से, ताकि ये एमएलए बच जाएं। लॉ देखो, एमएलए, किसी एमएलए को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया 1 नवंबर को, लॉ पास किया 8 नवंबर को हाई कोर्ट के डर से, तो ये वाला जो पीरियड है लॉ में ये लिख दिया जाता है 8 नवंबर को पास किए गए लॉ में कि ये जो लॉ है टू एग्जेम्प्ट दीज ऑफिसेज ऑफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज फ्रॉम द परव्यू ऑफ एक्ट ऑफ 2005, दिस लॉ विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 नवंबर, सो दैट ये 7 दिन के लिए भी ये डिस्क्वालीफाइड ना हो जाएं। ठीक है, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव लॉ को कोर्ट ये कहता है कि अगर एक दिन भी इन्होंने एक्वायर किया था, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस मेघालय की नहीं बनती रेट्रोस्पेक्टिव लॉ इस केस में लेके आने की, तो इसीलिए ये मैटर रद्द हो जाता है। समझ में आया? कॉन्स्टिट्यूशन चेक 192 डिसीजन 192 कहां दे रखा है? 10th शेड्यूल से रिलेटेड है। ठीक है, स्पीकर हैज नो रोल इन दिस केस। ठीक है, स्पीकर को रोल, उल्टा तो ये कहा जाता है कि स्पीकर के पास एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि ये एंटी डिफेक्शन लॉ का मैटर नहीं है, दिस इज अ मैटर आउटसाइड द हाउस, so that's why it becomes easier for you to memorize that this is a matter beyond the purview of speaker. स्पीकर का मैटर तो तब आएगा ना जब लोकसभा में रिलेटेड कुछ है, लेजिस्लेटिव असेंबली में है। ये तो लेजिस्लेचर एज अ बॉडी, एज एन ऑर्गन एंड गवर्नमेंट एज एन ऑर्गन के बीच का मैटर है। तो यहां पे इलेक्शन कमीशन की राय लेके गवर्नर डिसाइड करते हैं। गवर्नर, वाई गवर्नर, यहां पे भी लॉजिक है। बहुत टाइम लगा था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हुए, उतना टाइम जितना तुम्हें पढ़ने और समझने में लग रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नर इज वन सच रिप्रेजेंटेटिव हु इज अ पार्ट ऑफ बोथ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, सो ही इज राइटली प्लेस्ड टू डिसाइड ऑन सच क्वेश्चंस। आप कभी नहीं भूलोगे जीवन में ना, मतलब कि जब तुम्हारे बच्चे भी आईएएस बनने वाले होंगे, खुदा करे कि मोदी जी जैसा कोई आए नहीं, पता लगा ऑल इंडिया सर्विस ही उड़ा दी, एक तू ही टाइप, समझ रहे हो ना, मैं ही हूं सब कुछ। तो पता लगा नोटबंदी के साथ ये आईएएस बंदी भी हो गई, राइट। बच्चे तुम्हारे हो जाएंगे क्योंकि नसबंदी नहीं होगी अब दोबारा, वो इंदिरा गांधी थी मैडम। नाउ बिफोर गिविंग एनी डिसीजन ऑन एनी सच क्वेश्चन, the governor shall obtain opinion of election commission and shall act according to such opinion. Disqualification ये पढ़ चुके हो, 191 192 तुम्हें याद रखना है, राइट। A member may be disqualified by governor on the advice of election commission. ठीक है, ये हमने कर लिया कवर। Resignation, a member of legislative assembly resigns by writing to speaker and that of legislative council resigns by writing to chairman. कोई रॉकेट साइंसेस में है नहीं, सेम क्वेश्चन है, राइट।
तो इफ द मेंबर एब्सेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अगर कोई 60 दिन तक एमएलए बिना स्पीकर की मंजूरी के एब्सेंट रहता है, हमारे पंजाब में क्या होता है कि वो लोग कनाडा घूमने चले जाते हैं। एक दो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तो ऐसे हैं जिनके नाम पे पेट्रोल पंप चल रहे हैं। जो लोग पंजाब से हैं वो मेरी बात से अग्री करेंगे। किसी का रेस्टोरेंट चल रहा है, वो कनाडा चले जाते हैं, यहाँ पे वोट जीतते हैं, चंदा बंदा देते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, पेड टिकट खरीदते हैं, पेड टिकट मिल जाती है, ठीक है, 5-10 करोड़ की, वो पेड टिकट खरीदते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और वापस चले जाते हैं कनाडा। अब जब वो 60 दिन के लिए लापता होते हैं तो फिर पंजाब में या कहीं पे वहां पे क्या किया जाता है, पुलिस स्टेशन में जाया जाता है, एफआईआर लिखवाई जाती है ओपोजिशन के कैंडिडेट्स के, ओपोजिशन के एमएलएज या पॉलिटिकल पार्टी लीडर के द्वारा कि मेरा दोस्त लापता है। समझ रहे हो, दीवार के बाहर पोस्टर। अब एफआईआर दर्ज नहीं होती क्योंकि दिस इज अ मैटर इंटरनल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। स्पीकर को आगाह किया जाता है, लिखा जाता है कि मेरा दोस्त लापता है, पार्क में बैठा था, मजाक किया जाता है ऐसी चीज में। याद रहेगा 60 दिन, ठीक है। 60 डेज काउंट करते टाइम 4 कंसेक्यूटिव हॉलीडेज काउंट नहीं होती। अब फिर पुलिस जब एफआईआर नहीं लिखती तो पुलिस स्टेशन के बाहर ही उनके पोस्टर लगा दिया जाते हैं, लापता की तलाश, गुमशुदा की तलाश। फिर ये लिखा जाता है कि ये थोड़ा दिमाग से पैदल है और ये सब लिख दिया जाता है वहां पे, राइट, कि थोड़ा इनसेन है एज पर हिज कॉन्वर्सेशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ये लगता है कि ये थोड़ा दिमाग से सटाया हुआ है, तो इसको प्लीज जिसी को भी मिले तो ये पता करना। फिर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर तक को चिट्ठी लिख दी जाती है कि अगर ये भारत मूलवास का नागरिक तुम्हारे यहाँ पाया जाए तो इसे प्लीज इंडिया डिपोर्ट करें क्योंकि ये थोड़ा मानसिक रूप से तनाव में है। तो ये सारी चीजें पॉलिटिकल गिमिक्री करी जाती है इनके अराउंड। तो 60 दिन अगर कोई लापता रहे तो उसकी सीट वेकेट करी जा सकती है, प्रोवाइडेड स्पीकर वेकेट करें तो। सेंट्रल लॉ, प्रेविलेंस ऑफ सेंट्रल लॉ ओवर द स्टेट लॉ इन दिस केस नहीं है, क्योंकि सेंट्रल लॉ में ही ये लिखा गया है स्टेट गवर्नमेंट्स आर इक्वली एम्पावर्ड, राइट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज इक्वली एम्पावर्ड। क्योंकि यहां पे देखो एक्ट में भी लिखा होगा, तो मैं पढ़ा देता हूं। डिसीजन ऑन क्वेश्चन ये हो गया। डिस्क्वालिफिकेशन, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी state specified in the first schedule other than the offices declared by legislature of the state by law not to disqualify its holders। ठीक है, इस एक्ट में भी लिख रखा है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज इक्वली एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एनी ऑफिस एज आउटसाइड द परव्यू ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कॉन्कॉमिटेंट आर्टिकल इसमें से 89 माइनस कर दो, आर्टिकल 102 आ जाएगा। आर्टिकल 102 पार्लियामेंट का आर्टिकल है, वो भी कुछ यही कहता है कि पार्लियामेंट जो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के उन ऑफिसेस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्लॉज से एग्जेम्प्टेड डिक्लेयर कर सकती है। क्लियर? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? प्रहलाद एंड अदर्स? Clear? So state laws specific, guys, one thing, I was browsing through the messages on WhatsApp. अगर हम हिस्ट्री की क्लासेस अभी दिसंबर जनवरी में शुरू करें, 3 क्लासेस तुम्हारी ऑलरेडी चलती रहे, कितनों को दिक्कत है? या कोई लोग बाद में रिकॉर्डेड उसे कवर कर लोगे खुद से? अ वेरी गुड टीचर, ही इज MA हिस्ट्री, ही इज बीन टीचिंग एट वेरियस इंस्टीट्यूट्स, सो इवन दो हिस्ट्री इज नॉट मेंशन्ड इन योर सिलेबस, it would be proper if we cover at least modern history and medieval history. So कितने लोग हैं जो 1 से 1.5 घंटे की मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास 50 के अराउंड क्लासेस रहेंगी, अटेंड कर लोगे somehow? लिखो हिस यस, HIS या HES लिख दो फटाफट, या H नो लिख दो, अभी देखना मजा आएगा। लिखो फटाफट। टाइमिंग तुम लोग देखोगे सुबह 9, 10, 11 बजे, ठीक है। HES लिखो, HES।
ये फ्री में तो तुम्हें कुछ भी दे दो, है ना। अभी देखो इसकी 5,000 फीस है एक्स्ट्रा, कितने लोग यस बोलोगे, बोलो जल्दी। और तुम लोग जो मेंस के लिए हल्ला कर रहे हो ना एमजीपी, ये देखो मेरी बात सुनो, मेरे से जहां तक हो पाता है। अब यहाँ पे क्या है, इवन इफ देयर वुड बी एन एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ 1.5 to 2L, राइट, आई एम रेडी टू इनकर, बट वहां पे क्या है कि ठीक है हिस्ट्री जो है नहीं कमिटेड था, बट वी थॉट इट राइट। अब एमजीपी में क्या है, वी हैव टू पे 500 to 700 रुपीज फॉर एवरी आंसर कॉपी टू बी करेक्टेड, राइट। तो तुम जिनको नहीं कवर करनी होंगी वो लोग स्किप आउट कर देना उसको, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। प्रॉब्लम ये है तुम लोग ये बोलते हो सर इसके बाद और पैसे तो नहीं लगेंगे, सर आपने पहले नहीं बताया मेरे को। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि जिनको ज्वाइन करना है करो, नहीं करना मत करो, बट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। आई एम नॉट हियर टू एक्सटॉर्ट मनी आउट ऑफ यू या कुछ, राइट। सो द पॉइंट इज कि इसके लिए 500 to 800 रुपीज 22 टेस्ट्स के लिए आप मल्टीप्लाई कर लो, राइट। उसके बाद जो टेस्ट पेपर बनता है, यहाँ पे आना कभी करोल बाग, तो कंटेंट राइटर्स दे चार्ज अ हेफ्टी अमाउंट, राइट। तो ये सारे पैसे हमें देने पड़ते हैं उनको। ऐसा नहीं है कि आपके कोर्स में मैं खुद बताऊं गुडविल के अलावा मेरे को और कुछ अर्निंग नहीं होगी, राइट। तो काफी ज्यादा जीएसटी वीएसटी ये सब पे करना पड़ता है। द ओनली थिंग इज वी शुड बी एबल टू डू बेटर इन टर्म्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग आवर नेम। नहीं, हिस्ट्री के एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे, इट वाज जस्ट अ जोक, राइट, इट वाज जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। जो लोग मेंस गाइडेंस प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कर रहे हो, आई कैन वाउच फॉर द क्वालिटी एंड एवरीथिंग, उसमें भी हमें लॉस ही होना है अभी के लिए, क्योंकि वी आर एट एन एस्टैब्लिशिंग स्टेज। तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। एंड मुझे बुरा लगता है, मैं टेलीग्राम पे इंडिविजुअल कमेंट्स जो देखता हूं, तो जिसको ज्वाइन करना है वो करे। हमने एक ऑप्शन भी ये कर दी आपके केस में, तो वैसे भी जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, बिकॉज यू रिपोज योर ट्रस्ट एंड ऑल, 22 into 8 आप करोगे तो ये 14,500 से ज्यादा कॉस्ट आएगी। इस 1400 में 18% जीएसटी इंक्लूडेड है, तो आप लगा लो इसमें से 11,000 रुपए निकले, और उसमें से कंटेंट राइटर्स को पे करेंगे जो आंसर कॉपी इवैल्यूएट करेंगे, फिर डिस्कशन क्लासेस हैं, ये सारी चीजें हैं गाइस। आई होप यू वुड अप्रिशिएट माय साइड आल्सो। So, if a person becomes a member of the state legislature in 2 or more states, then the president shall specify the period after which all his seats shall become vacant, unless he resigns other seats. ठीक है, economy is already covered, Manu, in the integrated GS batch. Now, vacation of seats. किन किन कारणों से सीट्स वेकेट हो सकती है? If the person becomes president or vice president, ये हमने पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन एमएलए या एमपी है और वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है तो उसकी सीट अपने आप वेकेट हो जाती है, राइट। इफ द पर्सन इज इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ द गवर्नर, सिलेक्टेड फॉर द ऑफिस ऑफ द गवर्नर, ठीक है, इलेक्टेड की जगह सिलेक्टेड कर लेना। इफ अ पर्सन इज एक्सपेल्ड बाय द हाउस, हाउस ने उसको निकाल दिया, एंटी डिफेक्शन लॉ या फिर भगवंत मान जैसी करतूत अगर कोई कर दे, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस वगैरह, तो एक्सट्रीम केसेस में एक्सपेल भी किया जा सकता है। इफ द पर्सन्स इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ मनी इन द इलेक्शंस और एनी सच थिंग। क्लियर? ओवर यूज ऑफ मनी है या कोई और लॉ का वायलेशन है इन केसेस में। वेरी नाइस प्रहलाद, you seem to be, as I remember my first conversation with you, you are also working. So are you also working pro bono, बिना चार्ज किए सेवा पानी कर रहे हो ना? स्टेट लेजिस्लेचर, देखो इस ऑफिस का रेंट जाता है 3 से 3.5 लाख रुपए, समझ रहे हो। उसके बाद एम्प्लॉइज हैं 27 से 30, तो उनका खर्चा पानी मैं अपनी जेब से दे रहा हूं अभी कुछ हद तक। उसके बाद भी तुम बोलो फ्री में नहीं, मैं घाटे में पढ़ा रहा हूँ। नाउ कमिंग हियर, तुम्हें मजाक लग रहा हो तो आना कभी यहाँ पे अकाउंटेंट के लिए, बैठना 2 घंटे तो समझ में आ जाएगा लेखा जोखा एवरी। और ऊपर से वो लोग ये बोलते हैं कि सर आप रोज कोई नया प्रोग्राम अनाउंस कर देते हो। I love teaching and want to bring about a change in this. आगे चलो।
Every member has the freedom of speech in the state legislature subject to rules and orders of the house. No member of the legislature of a state shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote. तो ये क्या है, देखो अब यहां से शुरू होता है हमारा थोड़ा सा एनालिसिस. आर्टिकल 194 प्रिविलेजेस, आर्टिकल 105 प्रिविलेजेस, मैंने बताया था 105. Did we talk about it? I said that I will be covering it later on, but I could not. Now is the moment to cover, right? So no member of legislature of a state shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything or any vote given by him in the legislature or any committee thereof. अगर मैं एक एमएलए हूं, ठीक है, और मैंने ये बोला कि ठीक है मैं तुम्हारे कहने पे तुम्हारी फेवर में वोट दे दूंगा, तुम्हारी सरकार को बचा लूंगा, मैं एक निर्दलीय विधायक हूं. निर्दलीय मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट एमएलए, और अगर मैं वोट दे रहा हूं, मेरे को कांग्रेस ने या बीजेपी ने 10 करोड़ दे दिए और बाद में ये सामने आता है किस रूप में, कैश फॉर वोट स्कैम. ठीक है, कैश फॉर वोट स्कैम के रूप में अगर ये सामने आता है तो क्या करें. ठीक है, अगर ये कोर्ट में सामने आ जाता है तो क्या कोर्ट इसे इंक्वायर नहीं करेगा. लेट मी टेक यू टू 1993, नरसिम्हा राव सरकार. नरसिम्हा राव सरकार के केस में कुछ ऐसी ही चीज सामने आई. कोर्ट ने कहा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 105 दिस इज अ मैटर इंटरनल टू लेजिस्लेटिव असेंबली, इंटरनल टू लोकसभा, सो वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर. अब 1993 के बाद कुछ चीजें ऐसी होने लगी. जैन डायरीज, जैन डायरीज केस में क्या हुआ, सीधे सीधे हवाला एजेंट की एक डायरी पकड़ी गई जिसमें लिखा इतने पैसे इस मंत्री को दिए, इतने पैसे इसको दिए, इतने पैसे उसको दिए. फिर सेबी स्कैम हुआ, हर्षद मेहता स्कैम हुआ. तो जुडिशरी की जो टॉलरेंस थी और सरकार की जो छवि थी वो गिरती चली गई. अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 22 पॉलिटिकल पार्टीज की मिला के एक जो मिली जुली कोalition सरकार बनी, उसमें कोई गड़बड़ घोटाला नहीं था, लेकिन उनकी सरकार के एक मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने कॉफिन स्कैम कर दिया. कॉफिन मतलब जो हमारे सैनिकों को, वीर सैनिकों को दफनाने के लिए जो कॉफिन्स मंगाए गए, उसमें भी घोटाला कर दिया जॉर्ज फर्नांडिस ने. क्रेडिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट वाज गोइंग डाउन एंड डाउन एंड थिंग्स केम टू द वर्स्ट पार्ट व्हेन 1992 से करप्शन स्कैम्स बढ़ते गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से. नरसिम्हा राव ने कोर्ट में यह कहा कि 105 के तहत हमारा इंटरफेयर करना नहीं बनता. कैश अगर लिया गया है वोट के लिए तो वो आप एक्सप्लेनेशन देखना, मैं आपको बताऊंगा. एक्सप्लेनेशन में ये दे रखा है, कोर्ट ने ये कहा है कि अगर इंडिविजुअल एमपीज इंडिविजुअल कैपेसिटी में नोट लेकर वोट देते हैं तो वो उनकी इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है. एम आई बीइंग टू फास्ट? तो वो उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है. यानी कि जनता के प्रतिनिधि, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, इफ दे आर टेकिंग नोट्स फॉर गिविंग द वोट विच दे आर गिविंग ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, then it is fine because it is their individual right. This is what the Honorable Court of India, Supreme Court of India said in 1990s. उसके बाद the position changed. 2006 में कैश फॉर क्वेरी स्कैम हुआ, कैश फॉर वोट स्कैम भी हुआ. क्वेश्चन पूछने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, उसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि वो दिल्ली में नेशनल डेलीज, न्यूज़पेपर, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे आता है या दूसरे तीसरे पेज पे आ जाता है. इसी तरह से बनती है क्या, पब्लिक डिबेट, टीआरपी हो या कोई भी मुद्दा हो. तो एमपीज को क्वेरी पूछने के लिए पैसे दिए जा रहे थे. ये बात वीडियो टेप में सामने निकल के आई कांग्रेस के टाइम पे और उससे पहले भी, राइट. समझ रहे हो ना पॉलिसी डिबेट कैसे शुरू होगी. अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में एक मुद्दे को उठाता है और वो स्टील से रिलेटेड है तो स्टील वाले उसको पैसा देंगे. वो क्या होता है, स्पॉन्सर्ड क्वेश्चन. अगर मैं ये पूछूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं दिल्ली में लोकसभा में, मैं ये पूछूं स्पीकर महोदया, भारत की खाद्य सिक्योरिटी को देखते हुए, खाद्य सुरक्षा को, कीपिंग इन माइंड इंडिया फूड सिक्योरिटी, क्या हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को बढ़ावा नहीं देना चाहिए?
Should we not give a try to these genetically modified crops? तो मेरे को कहीं ना कहीं से पैसे मिले होंगे। बात साफ है, समझ रहे हो ना। अब जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा और मैंने जो कैश लिया था, अगर वो चीज मीडिया में आती है तो क्या हम ये कहेंगे कि नो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट और लोकसभा शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट in respect of anything said or any vote given by him in the legislature? बावजूद इसके कि एक स्कैम सामने आ चुका है। कोर्ट ने बोला 1990s में हां कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन 2006 में कोर्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज किया। कैश फॉर वोट स्कैम के टाइम पे कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे ब्लैटेंट करप्शन हो रही है या ऐसे टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो वी आर राइटफुल टू इग्नोर डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी। प्लीज राइट डाउन दीज टर्म्स, डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी। वो हो जाएगी अभी, राइट अर्शिका? हो जाएगी राइट। प्रीलिम्स 2021 से पहले हो जाएगी, अभी रुक जाओ। आएंगे, अकाउंट में आएंगे 15 लाख। उसने बोला ना, आशीष ने बहुत सही बोला, आप मोदी जी की तरह अनाउंसमेंट कर देते हो। अभी तो तुम्हारे साथ तो फिर भी ठीक है, लेकिन बाहर जब डीएनए में ये अनाउंसमेंट हो जाती तो दिक्कत कर देती है ना। हाजिरी लगाओ तुम सब जो नाराज हो गए हो मेरे से, थोड़ा थोड़ा लगता है मुझे ऐसे। हाजिरी लगाओ, शाबाश। So are you able to appreciate this point guys? ये पॉइंट समझ में आया? ये आर्टिकल 194 ये कहता है कि लोकसभा में जो भी हो रहा है उसका जज स्पीकर है। स्पीकर ये तय करेंगे वो गलत है या सही, पार्लियामेंट अपने इंटरनल मैटर्स को खुद सुलझाएगी। क्लियर? क्लियर है ये? Just 1 minute. Just give me 1 minute. इसी के साथ ही एक और आर्टिकल है, आई वॉज जस्ट कंफर्मिंग, आर्टिकल 121, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन द पार्लियामेंट। नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज। हाँ प्रिया, आप डाउट को टाइप करो, मैं आंसर करता हूं जरूर, ठीक है। 121, 194 ये कहता है कोर्ट शुड नॉट इंक्वायर फॉर एनीथिंग सेड इन दी लोकसभा और लेजिस्लेटिव विंग में लिख लेते, ठीक है। और 121 ये कहता है कि पार्लियामेंट में किसी जज के कंडक्ट को लेके कोई डिस्कशन नहीं होगा एक्सेप्ट थ्रू मोशन फॉर रिमूवल ऑफ अ जज, एक्सेप्ट व्हेन जज को रिमूव करने का सवाल उठ रहा हो। बिल्कुल ठीक,
क्लियर है? ये कहां पे है? ये दोनों आर्टिकल्स और आर्टिकल 50 ये बताता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। बट एक और डॉक्ट्रिन भी है, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। इन दोनों में जो एक फाइन बैलेंस है उसको रिकंसाइल करते हुए चलना है। इंडिपेंडेंस इज गुड when everything is going fine. Interference नहीं माना जाएगा if something is amiss in the functioning of judiciary or legislature. समझ में आया? तो ये जो है फाइन लाइन अगर ब्रीच हो जाएगी, एमएलए एमपी घूस लेने लगेंगे, ये सब होने लगेगा, तो जुडिशरी बैठ के तमाशा थोड़ी ना देखती रहेगी। ठीक वैसे ही जनवरी 2018 में हमारे यहां पे जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं? सीजेआई के साथ, CJI plus 4 senior most judges of the Supreme Court, they are a part of collegium and collegium ये डिसाइड करता है कि जजेस अपॉइंट होने चाहिए या नहीं, कौन से जज को प्रमोट किया जाए, कौन से जज को हाई कोर्ट लेवल पे प्रमोट किया जाए, फिर हाई कोर्ट वाले जजेस को सुप्रीम कोर्ट पे। 4 सीनियर मोस्ट जजेस ने बाहर आके प्रेस में ये कहा कि CJI दीपक मिश्रा जो अब रिटायर हो गए हैं, वो जो है हमारी बात नहीं सुन रहे हैं और हम लोग जो है छुनछुना बजाते रहते हैं, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते रहते, द हिंदू, यूपीएससी की तैयारी कर लेंगे, ठीक है, वेले बैठे रहते हैं वो 4 सीनियर मोस्ट जजेस, इवन व्हेन कॉन्स्टिट्यूशनली इंपॉर्टेंट केसेस आर बीइंग असाइन्ड टू देयर जूनियर्स। मतलब जूनियर जजेस जो दीपक मिश्रा के मन चाहे जजेस हैं, उनको केसेस हैंडओवर करे जा रहे हैं, आधार एक्ट और ये सब, जबकि सीनियर जजेस वेले बैठे हैं। तो सीनियर जजेस ने ये बोला कि हमें मजबूरन बाहर आके ये बात प्रेस को बतानी पड़ रही है ताकि ये देश, ये जनता हमें नहीं कोसे, हमें दोषी नहीं ठहराए बाद में कि इन जजेस ने क्यों आवाज नहीं उठाई। प्रेस ने उनसे पूछा कि क्या आपने पहले सीजेआई को ये बात बोली? उन्होंने बोला यस, सीजेआई इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर, ही डिसाइड्स व्हाट केस वुड गो टू व्हाट जज, What case will be heard by which bench of judges। हमने उनसे ये बोला कि हमें केसेस एलोकेट करो, जब उन्होंने नहीं करी, 10-15 दिन हो गए, तो हमें बाहर खुलेआम आके इस बात का खुलासा करना पड़ रहा है। यानी कि अब ये किसको न्योता था? 4 सीनियर मोस्ट जजेस किसको यहां पे एड्रेस करना चाह रहे थे? पाकिस्तान को, मालदीव्स को, चाइना को कि आओ हमारे यहां पे इंटरनल मैटर्स में दखल दो? नहीं, सरकार को, पार्लियामेंट को बोलना चाह रहे थे। What they could not have done, what they could not do directly, or what they should not have done directly, they were doing it indirectly through the medium of press। यही मतलब है ना। हमारे मिनिस्टर भोले शंकर की तरह मिस्टर रविशंकर प्रसाद ये बोलते हैं, जो कि काफी पॉलिटिकल एक्यूमेन रखते हैं, right? He started speaking fluent English like Nirmala Sitharaman। He said this is a matter internal to judiciary, we can't interfere in that। यही सेम स्टेटमेंट आया था हमारे फॉरेन सेक्रेटरी का जब मालदीव्स में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था, सीनियर जजेस को जेल में डाल दिया था डिक्टेटोरियल टेंडेंसी रखने वाले वहां के प्रेसिडेंट ने। तो उस टाइम फॉरेन सेक्रेटरी ने बोला दिस इज अ मैटर इंटरनल टू मालदीव्स, हम कुछ नहीं करेंगे उसमें। मॉकरी ऑफ इंस्टीट्यूशंस। फिर सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाया गया, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी, ठीक है। तो उसमें भी वेंकैया नायडू ने उसको ब्लॉक कर दिया। पॉइंट ये है कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है, ये पता क्या हो गया? इसका पूरा नाम है, देखो मजे से पढ़ा रहा हूं मैं, देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस जो है, मैं कभी बुक लिखूंगा ना, थोड़ा जब मेरा नाम हो जाएगा तो मैं ये सारी चीजें अपने मेटाफर्स और ये सब यूज करूंगा। डॉक्ट्रिन ऑफ, इसका अगर हम देखें, चेक, वन इंस्टीट्यूशन शुड कीप अ चेक ऑन एन अदर, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है। अब ये पता क्या हो गया? यू स्क्रैच माई बैक जुडिशरी एंड आई विल स्क्रैच योर बैक। तुम हमारे फटे सिल दो, हम तुम्हारे फटे सिल देंगे, और देश को क्या पता है? वो तो वही पता है, भाइयों बहनों, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये पता क्या बन गया है? डॉक्ट्रिन ऑफ CHEQUES, मॉनेटरी टर्म, एंड बैलेंस, बैंक बैलेंस, बैलेंसेस। दोनों इंस्टीट्यूशंस लगता है कुछ ऐसा कर रही हैं, ठीक है।
तुम हमें चेक दे दो जहां जरूरत है, हम तुम्हें चेक दे देंगे, तुम हमें राज्यसभा में एलिवेट कर देना, हम तुम्हारा राइफल पास कर देंगे। कुछ ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। दोनों की गलतियां सुधारने के लिए दोनों के दोनों ये डॉक्ट्रिन को भूल गए हैं और बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इज मोर इंपॉर्टेंट। डन है डील, चलें आगे। प्रिया, मैं आपका क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल है, आज मेरा रिदम टूट जाएगा, मैं जो पढ़ा रहा हूं समझ में आया? डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दे रखा है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स भी दे रखा है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इज नॉट लाइक अ चाइना वॉल की जिसको हम लांग नहीं सकते, राइट? समझ में आया ये, या मैं ऐसे ही बोल रहा हूं? इट कैन रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर बाय इट्स ओन रूल्स and adjudicate upon such matters. It can publish its events in the house and prohibit others from doing the same. House अपने matters खुद ही सुलझा लेगा, ठीक है? हाउस ये डिसाइड करेगा कि कौन से प्राइवेट न्यूज चैनल को आने देना है या नहीं। स्पीकर के पास ये पावर्स हैं, ठीक है? कौन आएगा, कितने कैमराज होंगे, कौन कहां तक जा सकता है, ये सारा कुछ, कौन से न्यूज क्या पब्लिश किया जाएगा या क्या नहीं पब्लिश किया जाएगा। इसीलिए जब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ गलत बोलता है तो उसमें लिखा जाता है रिमार्क्स टू बी एक्सपंज्ड। स्पीकर बोलते हैं ना, रिमार्क्स को डिलीट कर दो, एक्सपंज कर दो, यानी कि ये पार्लियामेंट की जो रिकॉर्ड बुक है, डेलिब्रेशंस की एक बुक होती है पार्लियामेंट में, वो सारा कुछ लिखा जाता है ताकि कल को कोई इतिहास में आएगा तो वो ये सारा कुछ पढ़ सके। इस पे डिस्कशन हुआ था, इस पे डिबेट हुआ था, ये सब। जैसे आज हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को पढ़ते हैं, ठीक है? It has a right to exclude outsiders from its meetings. It can punish anyone for breach of privilege. अगर कोई प्रेस पर्सन breach of privilege करता है तो उसको हाउस पनिश कर सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली पनिश कर सकती है। ये दो तरह की प्रिविलेजेस हैं, कलेक्टिव प्रिविलेजेस और इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी के लिए कलेक्टिव प्रिविलेजेस की। It can prohibit the court from inquiring into its proceedings. Again, doctrine of separation of powers. Clear? Now, powers, privileges and immunities. Unless the presiding officer allows, no one can be arrested inside its premises or be served any legal process. अगर स्पीकर की परमिशन के बिना किसी को पुलिस अरेस्ट करती है, चाहे कितना ही कोई संगीन आरोप क्यों ना हो, नहीं अरेस्ट किया जा सकता। यह है इंडिविजुअल, ठीक है? कलेक्टिव है बट इसका फॉल आउट, इसका बेनिफिट इंडिविजुअल एमपीज उठाते हैं। इट कैन डिमांड इमीडिएट इंफॉर्मेशन ऑफ इट्स मेंबर्स। मेंबर्स क्या कर रहे हैं, कहां हैं, पुलिस से इंफॉर्मेशन देनी जरूरी होगी। अगर किसी पुलिस ने, किसी थाने ने किसी एमपी या एमएलए को उठा लिया है, अरेस्ट कर लिया है क्राइम के चलते, तो भी ये इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है। इट कैन ऑर्डर इंक्वायरीज एंड कॉल फॉर विटनेसेस विद रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। कुछ भी कर सकती है पार्लियामेंट अगर पार्लियामेंट को लगता है उसके कामकाज के लिए ये जरूरी है। नाउ मेंबर्स आर exempted from giving evidence and appearing as a witness in court. Members of parliament और members of state legislative assembly को कोर्ट के सामने पेश होने की जरूरत नहीं है जब लोकसभा या राज्यसभा का सेशन चल रहा हो। एज अ विटनेस और एज अ कन्विक्ट या एज एन एक्यूज्ड भी कोर्ट नहीं बुला सकता जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। और तो और मेंबर्स कैन नॉट बी अरेस्टेड 40 days बिफोर एंड 40 days आफ्टर अ सेशन इन सिविल केसेस। ठीक है, मेंबर को क्रिमिनल केस में नहीं, क्रिमिनल केस में अरेस्ट किया जा सकता है 40 days। अगर पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होना है 1 नवंबर को, 20 सितंबर के बाद उस एमएलए को सिविल केस में, चाहे उसका कितना ही चेक वेक बाउंस ना हो गया हो, चाहे वो विजय माल्या ही क्यों ना हो, उसको अरेस्ट ही नहीं किया जा सकता अगर वो राज्यसभा का मेंबर है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का या लोकसभा का। क्लियर? सेशन खत्म होने के 40 दिन के बाद भी उसको सिविल केस में प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। अब आप मेरे से ये पूछो कि इसके पीछे रैशनल क्या है, रैशनल रीजन क्या है? रीजन ये है, अगर मैं बीजेपी में हूं, मैं भाइयों बहनों हूं, ठीक है, समझ रहे हो ना, और या फिर मैं बहुत दिल का बहुत शाह हूं, तो मैं क्या करूंगा? मेरे को पता है ये कांग्रेस का एमएलए है, ये कांग्रेस का एमपी है, ये मेरे काम में खलल पैदा करेगा, मुझे पास करना है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, आई एम दी होम मिनिस्टर। ठीक है, मैं कांग्रेस के इस एमएलए के खिलाफ जो एमपी के खिलाफ जो केस पड़ा है चेक बाउंस का या कोई और फर्जी सिविल केस, उसमें पुलिस को बोलूंगा जाके इसको अरेस्ट कर लो। ठीक है,
इसलिए ये प्रोविजन दिया गया है। और फिर मैं एक एमपी को ये थ्रेटन कर, दूसरा पहलू कि 40 दिन बाद क्यों अरेस्ट नहीं कर सकते। एक एमपी है, मैंने होम मिनिस्टर ने ये बोला उसे कि मेरे इस बिल की फेवर में वोट करना, ट्रिपल तलाक बिल आ रहा है, नहीं तो तुम्हें जेल भेज दूंगा, ठीक है। अब वो एमपी 40 दिन तक अगर वो बाहर निकलेगा, उसको पुलिस अरेस्ट करेगी तो उसे लगेगा हाँ होम मिनिस्टर ने सही कहा था, मैं वोट फेवर में कर देता उस बिल की तो मैं बच जाता। इसलिए 40 दिन का ये प्रोविजन 40 दिन पहले और 40 दिन बाद रखा गया है। प्रहलाद देखो भाई गाइस, मैं थोड़ा सा वियर्ड एग्जांपल दूं, तुम लोग बुरा थोड़ी मानोगे, बता दो जो लोग बुरा मानोगे, एन लिख दो। फटाफट लिख दो, उसके बाद मैं आंसर दूंगा। तुम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो ना, मतलब मेरे को लगता है घूंघट ले लो, शर्म आ जाती है ऐसे क्वेश्चन पूछते हो कभी कभी। डीएनए नहीं सुनते थे प्रहलाद? Privileges Committee summons activist. Committee on Privileges of the Goa Assembly has issued a notice. अब ये privileges का कैसे धज्जियां उड़ाई जाती हैं, यहां पे देखो। थोड़ी सी प्रॉब्लम है अभी तक। देखो कितनी देर की क्लास हुई है, 44 मिनट्स की। इस 44 मिनट्स की क्लास में बुरा मानोगे, मतलब यस लिख रहे हो, चलो छोड़ो रहने दो फिर। देखो 88 फ्रेम्स ड्रॉप हुए हैं, थोड़ी सी आवाज में प्रॉब्लम है, ज्यादा नहीं। क्लियर? तो आगे चलते। देखो एक एग्जाम्पल, कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ गोवा असेंबली हैज इशूड अ नोटिस समनिंग आरटीआई एक्टिविस्ट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर काशीनाथ शेट्टे टू अपीयर बिफोर इट। ठीक है, इन कनेक्शन विद एन एलिजिड ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन रेज्ड बाय एन एमएलए। एक एमएलए है इन जुलाई, मिस्टर शेट्टे, हु इज आल्सो अ जूनियर इंजीनियर विद द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफ गोवा, had uploaded a photograph of Mr. कबराल कौन है? एमएलए, ठीक है। कबराल ने एक क्वेश्चन पूछना था, वो क्वेश्चन आरटीआई एक्टिविस्ट शेट्टे के पास गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पास, ठीक है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। और शेट्टे ने क्या किया, उन्होंने कबराल का वो क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन अभी आंसर नहीं हुआ था, शेट्टे द आरटीआई एक्टिविस्ट, he uploaded the question on his Facebook page. Very nice, ठीक है। तो कबराल ने बोला कि ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, क्योंकि मिस्टर शेट्टे ने जो है गवर्नमेंट सर्वेंट की कैपेसिटी में ऑफिस की सीक्रेसी का उल्लंघन किया है, वॉयलेट किया है। मिस्टर शेट्टे said the RTI activist said that he had filed various petitions in the past as a private citizen and the assembly question was an open document. अब यहां पे देखोगे कलेक्टिव प्रिविलेजेस क्या होती हैं। एमएलए ने बोला, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मैं सनसनी मचाऊंगा। एक मिनट रुक जाओगे, इसको ना थोड़ा सेट करने दो। शेट्टे ने ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गोवा के पास क्वेश्चन चला गया। वो क्वेश्चन जो कि एमएलए ने पूछा था, एमएलए का पूछा गया क्वेश्चन मिनिस्टर को आंसर करना था। मिनिस्टर के पास जब वो रिटन क्वेश्चन गया, अनस्टार्ड क्वेश्चन था वो, ठीक है, तो मिनिस्टर को 10 दिन का टाइम मिला। 10 दिन में मिनिस्टर ने ये क्वेश्चन यहां पे भेज दिया कि ये आंसर करेंगे, और फिर ये जो आंसर मिलेगा, ये आंसर मिनिस्टर इनको दे देंगे, ठीक है। क्लियर है? होना तो यही चाहिए था। शेट्टे ने क्या किया, मिस्टर कबराल, ये एमएलए जो हैं, अब इनको था कि मैं टीआरपी बटोरूंगा। एमएलए ने सोचा कि मैं लेजिस्लेटिव असेंबली के चैनल पे आऊंगा, गोवा में कितना अच्छा लगूंगा मैं। इन बेचारे ने नई ड्रेस भी सिलवा रखी होगी कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने कितने का घोटाला किया है। शेट्टे ने वो क्वेश्चन पहले ही एफबी पे अपलोड कर दिया। एमएलए को लगा, ओ नो, ये क्या हुआ, मतलब मेरी सारी टीआरपी तो ये ले गया शेट्टे, राइट, ओ शिट। अब शेट्टे के खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मैटर चला दिया। हाउस को ये कहा
कि शेट्टे जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉय की हैसियत से ये नहीं करना चाहिए था, क्वेश्चन अपलोड नहीं करना चाहिए था, बिकॉज हाउस ने अगर ये क्वेश्चन भेजा है मिनिस्टर ने तो वो सीक्रेट कैपेसिटी में रखा जाना चाहिए था जब तक उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे दिया गया। शेट्टे ने सोचा मैं आरटीआई एक्टिविस्ट, मेरे 10,000 फॉलोअर 11,000 हो जाएंगे इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है। उसके बाद ये ब्रीच था, ये राइट केस है। दिस इज जस्ट टू एग्जाम्प्लीफाई एज टू हाउ द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज टेक्स प्लेस। गॉट इट? समझ में आया? ये प्रिविलेज क्या है कि जो इंफॉर्मेशन स्पीकर के पूछे बिना नहीं दी जा सकती थी, वो इंफॉर्मेशन शेट्टे ने कैसे लीक आउट कर दी, ठीक है। द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज द राइट टू एक्सक्लूड आउटसाइडर्स. It can publish its events in the house and can prohibit others from doing the same. So there was a prohibition on outsiders to share the questions of legislative assembly until and unless they have been answered by the minister in the Lok Sabha. That question was confidential. शेट्टे ने ये कहा कि मैंने कोई गलती नहीं करी क्योंकि वो एक ओपन क्वेश्चन था। जब वो क्वेश्चन पूछा गया था तब लेजिस्लेटिव असेंबली में गोवा में आंसर किया गया था। एग्जाम्पल से समझ में आ गया कि प्रिविलेजेस कैसे होती हैं। अब मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल दूंगा जल्दी जल्दी। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यूपीएससी मेंस 2014। Powers, privileges and immunities of Parliament and its members, as envisaged in Article 105 of the Constitution, leave room for a large number of uncodified. अभी तक मैंने 3 चीजें बताई हैं जो कोडिफाइड नहीं है। बोलो क्या क्या? करंट अफेयर्स की क्लास में, पॉलिटी की क्लास में 2-3 चीजें हैं जो कोडिफाइड नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अलावा बताओ। और बताओ कोडिफाई क्या करा जाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड कोडिफाइड नहीं है। तीसरा, ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कोडिफाइड नहीं है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होंगी क्या नहीं होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा कि आर्टिकल 105 के तहत आने वाले दिनों में, सालों में, दशकों में, डेकेड्स में, ईयर्स में पार्लियामेंट कोई ना कोई लॉ बनाएगा। जब तक पार्लियामेंट वो लॉ नहीं बनाता तो ब्रिटिश का जो हाउस है, ब्रिटेन में जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल है, हमारी जैसी पार्लियामेंट है, वहां से इन कन्वेंशंस के जरिए इंडिया में इन्हें अडॉप्ट कर लिया जाए। ब्रिटेन में कन्वेंशंस थोड़ी अलग हैं, अब वहां पे भी कन्वेंशन चेंज हो रही हैं, लेकिन हमने जिस तरीके से इस कन्वेंशंस को इंटरप्रेट किया है उससे एमपीज को, एमएलएस को फायदा मिल रहा है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी हमारा राइट है, लेकिन इसका फायदा राइट टू इक्वालिटी यानी कि सर्वेंट जो है, कौन है सर्वेंट यहाँ पे? एमपी, एमएलए है ना। प्रधानमंत्री बोलते हैं ना, मैं प्रधान सेवक हूं, राइट। रेंज रोवर में जो घूमे उसे मेवक, सेवक ही क्या, कैसे कह लोगे सेवक? 5 रेंज रोवर, समझ रहे हो? तो बुलेट प्रूफ तो एम्बेसडर भी हो जाती और सब कुछ हो जाता बुलेट प्रूफ। तो पुरानी वाली बीएमडब्ल्यू बोले मैं नहीं चलाऊंगा, मैं कुछ और चलाऊंगा, तो प्राइम मिनिस्टर ठीक कहते हैं, वो प्रधान सेवक हैं। वैसे ही सारे एमपीज, एमएलए सेवक हैं। अब सेवक जो है उसके पास इम्यूनिटी है, वो अरेस्ट नहीं होगा, उसको कोई कुछ पूछ नहीं सकता। दिस इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। आई एम नॉट बीइंग ट्रीटेड इक्वली विद माय एमएलए और एमपी हु हैपेंस टू बी माय सर्वेंट, नॉट माय सर्वेंट, पर्सनल सर्वेंट, बट ही इज द सर्वेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी टू विच आई बिलोंग। चमका? तो ये क्वेश्चन यहां पे है। अब यूपीएससी क्या पूछ रही है इसमें, बहुत ज्यादा यूपीएससी ये पूछ रही है कि इसमें एम्बिग्विटी है। आर्टिकल 105 में दी गई पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज कुछ इस तरह से इंटरप्रेट करी जाती हैं कि उसमें इतनी ज्यादा गुंजाइश हो जाती है फॉर लार्ज नंबर ऑफ अनकोडिफाइड एंड अनएन्यूमरेटेड प्रिविलेजेस टू कंटिन्यू, जो कि होना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में लोग ही शासक हैं। लोगों के शासक जब ये काम करने लग जाएं तो गड़बड़ है। मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं, कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये कोई वियर्ड एग्जांपल नहीं है, जो लोग मम्मी पापा के साथ देख रहे हैं उन्हें बताना कि देखो इसके लिए वोट करके आए थे तो बहुत गलत करके आए थे तुम्हारे मम्मी पापा, राइट। जो लोग कर्नाटका से या कहीं से हैं, 2 एमएलएज कहां बैठ के, टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी में, कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ के पोर्नोग्राफी देख रहे थे।
पीछे बालकनी में जो लॉबी में जो कैमरा होता है उसने उन्हें शूट कर लिया, कैप्चर कर लिया ब्लू फिल्म देखते हुए। कभी कभी लगता है सऊदी अरेबिया में बहुत सही नियम है, अगर ऐसी कोई गलतियां करता है तो उसे गोली के सामने पॉइंट ब्लैंक पे उड़ा दिया जाता है। समझ रहे हो? दिस इज अनदर एग्जाम्पल। अब कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली का एक मैटर कर्नाटका हाई कोर्ट में जाता तो स्पीकर ने आर्टिकल इन्वोक कर दिया। आर्टिकल 194 के तहत इन कैमरा पर्सन्स जो प्राइवेट न्यूज चैनल के थे उनके खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का जो प्रोसीडिंग्स हैं वो स्टार्ट कर दी। क्यों? क्योंकि वो दोनों एमएलएस भी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के थे। शेम ऑन यू। मतलब समझ रहे हो तुम? This is why I tell you that UPSC asks questions which are critical of state of affairs in our country, है कि नहीं? इसीलिए यूपीएससी इसमें देखो सामने ये दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन उन्हीं दिनों का है, ये जब ये कंट्रोवर्सीज हो रही थी। अभी मैं रुकूंगा नहीं, अभी मैं और एग्जांपल दे रहा हूं। ये तो सबसे शेमफुल है। इसमें भी कैश फॉर वोट हुआ तो जुडिशरी बोलती है मैटर इंटरनल। अरे भाई मैटर इंटरनल पाकिस्तान का थोड़ी है। जब हमारे यहां इन चीजों में पाकिस्तान बना दोगे तो क्या जरूरत है वहां पे अटैक करने की? पहले यहां पे करो ना, फिर तुम बोलते हो कि पाकिस्तानी अंदर आ गए, अटैक ऑन पार्लियामेंट हो गया। काम तो तुम खुद वैसे कर रहे हो। आगे चलो। एग्जाम्पल नंबर 2, एक एमएलए अगेन द पियोस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इन एमएलए से एक टैबलॉइड न्यूज़पेपर, आगे होगा वो एग्जाम्पल। टैबलॉइड न्यूज़पेपर होता है ना, टैबलेट पे पढ़ते हो ये सब, है ना। टैबलेट न्यूज़पेपर चलाने वाले एक जर्नलिस्ट ने, 2 जर्नलिस्ट थे, उन्होंने एमएलए के डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स के खिलाफ अपने टैबलेट न्यूज़पेपर में बड़े बड़े शब्दों में छाप दिया कि इनकी संपत्ति इतनी से इतनी हो गई है और ये सब। इस एमएलए ने इसकी कंप्लेंट कहां करनी चाहिए थी? थाने में करनी चाहिए थी। किस कैपेसिटी में? देयर इज अ सेक्शन 500A, सेक्शन 500CR, सेक्शन 500 IPC, डिफेमेशन। अगर कोई मेरे को डिफेम करता है तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में डिफेम कर रहा है तो मैं उसकी कंप्लेंट सेक्शन 500 में जाके करूं, राइट। लेकिन इस एमएलए ने इनकी कंप्लेंट करी प्रिविलेजेस कमेटी ऑफ कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली। और मैटर यहां नहीं रुका, क्योंकि ये एमएलए रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के थे। इन 2 टैबलेट ओनर्स को, क्योंकि सारे एमएलए जो रूलिंग पॉलिटिकल, जो एथिक्स कमेटी के, जो प्रिविलेजेस कमेटी के जो मेंबर्स थे ना, वो सारे के सारे मेंबर्स के भी एसेट्स दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे थे। तो उनको लगा कि इन लोगों का मुंह बंद करना पड़ेगा वरना ये सबकी पोल खोल के रख देंगे। इस एमएलए ने इनको कोर्ट की जगह, कर्नाटका हाई कोर्ट या सेशंस कोर्ट में जाना चाहिए था, कोर्ट की जगह इन्हें ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस का मैटर इनके खिलाफ चला दिया। और उस प्रिविलेजेस कमेटी ने इन टैबलेट प्रेस रिपोर्टर्स को या टैबलेट न्यूज पब्लिशर्स को क्या किया? प्रिविलेजेस कमेटी ने इन्हें 1 साल की सजा सुना दी। अब मैं क्या बोलूं यहां पे। फिर ये दोनों बेचारे गए। टैबलेट न्यूज़पेपर कौन चलाएगा? जिसके पास डी न्यूज या पी न्यूज या सी न्यूज के साथ लड़ने की ताकत ना हो। न्यूज एनालिसिस यूट्यूब पे कौन करेगा? ये मेरे जैसे बेचारे लोग ही करेंगे, राइट। तो उनको 1 साल जेल में डाल दिया। अब उन बेचारों ने हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल किया कि हमारी गलती है। हमारी गलती नहीं है, ये प्रिविलेजेस कमेटी का मैटर नहीं है, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक एमएलए के खिलाफ अगर हमने कुछ लिखा है, अगर उनको दिक्कत है तो वो हमारे खिलाफ डिफेमेशन का केस जारी करें। अब एमएलए की दिक्कत ये थी कि अगर एमएलए मानहानि यानी डिफेमेशन का मैटर फाइल करेंगे तो डिफेमेशन तो तब होगा ना जब बात में सच नहीं होगा, फिर पूरा पेंडोरास बॉक्स ओपन हो जाएगा। एमएलए ने ये केस खत्म हुआ, हाई कोर्ट ने बोला कि हां आप ठीक हो, आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, प्रिविलेजेस कमेटी की जजमेंट गलत है। ठीक है, जब इतना फ्लैग्रेंट मिसयूज होने लगता है इन प्रिविलेजेस का, भले ही लेजिस्लेटिव असेंबली की किसी कमेटी ने गलत सही कुछ कह दिया हो तो जुडिशियल रिव्यू उनका भी होने लग गया है पिछले 10-15 सालों से। ठीक है, तो इस न्यूज टैबलॉइड इनको ऑनर्स को फ्री कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया, देवर फ्रीड।
फिर एमएलए ने इनके बाइज्जत बरी होने के बाद अगर एमएलए सच्चा था, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स नहीं थे, तो इनके खिलाफ डिफेमेशन का केस फाइल करता, नहीं किया, ठीक है, केस ही फाइल नहीं किया. So that proves the point कि these privileges are being misused and these are being stacked against honest citizens, RTI activists, right? To thwart the process of transparency. ये था उस दिन का मेरा question. This discussion of ours, it suffices for your Article 105 and Article 194 as well. Assess the reasons for absence of legal codification of the parliamentary privileges. How can this problem be addressed? ठीक है guys, समझ में आया ये? South. High Court restrains Karnataka from not taking action. ये वाली न्यूज है, इसको पढ़ लेना, ठीक है. अच्छा, एक बात है, एथिक्स का क्वेश्चन या वैसे ही सुन लो मेरा बाबा जी का ज्ञान. मानहानि, डिफेमेशन अमीर लोगों की होती है, गरीब आदमी का कोई मान सम्मान होता नहीं है वैसे, है ना. मानहानि, तुम्हारे लिए मानहानि हो जाएगी अगर मेरे खिलाफ कोई एलिगेशन लगाए, मैं कुछ नहीं कर सकता. मानहानि नहीं है, क्योंकि मेरे पास सामान नहीं है. जिन लोगों के पास सामान है, अरुण जेटली, DDCA, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एकेडमी, वहां पे स्कैम किया. केजरीवाल ने आरोप लगाए, मानहानि का दावा ठोका अरविंद केजरीवाल के खिलाफ. अरुण जेटली ने, अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी पड़ी. अभी तो पॉलिटिकल साइंस की डिग्री पे ये विवाद नहीं हुआ. प्राइम मिनिस्टर मोदी भी ये कह सकते थे कि मेरे पास डिग्री है, केजरीवाल झूठ बोल रहा है, राइट. ये सारी चीजें जो है बड़े लोगों की, आप देखोगे बड़े बड़े लोग हैं वही जाते हैं कि मेरी मानहानि हो गई, मेरी मानहानि हो गई, राइट. क्योंकि गरीब आदमी के पास केस वेस लड़ने के पैसे नहीं है. नाउ सेक्शन 500A का एनालिसिस है ये. डिफेमेशन के खिलाफ, डिफेमेशन क्या क्रिमिनल होना चाहिए? अगर कोई किसी को डिफेम करता है तो अगर वो क्रिमिनल एक्ट होगा, मैंने अगर किसी को डिफेम कर दिया तो क्या मैं क्रिमिनल हूं? There is a very thin line between defaming someone and my intention. What seems to be defamation to you, my intention was to bring out the truth. So by criminalizing defamation, is our legal system not penalizing the truth seekers? मुझे लगता है कि राफेल में घोटाला हुआ है. अब अगर मैं राफेल में घोटाले की बात करता हूं, किसी नेता का, किसी मंत्री का नाम लेता हूं, तो क्या मैं डिफेमर हूं? तो क्या मुझे जेल की सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए? वो भी तब जब ये इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है. डिफेमेशन इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी शुड नॉट बी क्रिमिनल. डिफेमेशन क्रिमिनल होगा तो इट विल बी लाइक रिटेनिंग द डेथ पेनाल्टी फॉर द पेंसिल स्टीलर्स. समझ में आया ये? तो इसको हम किसी और दिन गवर्नेंस में डील करेंगे. अभी के लिए लिख लेना, शुड डिफेमेशन बी क्रिमिनल? Should defamation attract criminal punishment? Isn't civil punishment enough? Petitioners had questioned the constitutional validity of the resolution passed by assembly. तो ये पढ़ लेना गाइस, ठीक है इसको. अब powers etc. Legislative Assembly ditto the same. बस मेरे को आपको इसमें अब कल लेजिस्लेटिव काउंसिल पढ़ाना है. गवर्नर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द मेजर डिफरेंस और द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस, veto power or reserving the bill. Okay, so these things are there. All right, so that brings us to the close for the day. आर्टिकल 333, ये सारा कुछ हमने पहले से थोड़ा बहुत काफी कुछ कवर कर रखा है. तो कल मैं सिर्फ आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला पार्ट यहां पे पढ़ाऊंगा. रेस्ट इज द सेम. प्लीज रीड इट ASAP. Okay. Thank you guys.